وی سی صاحب اس وقت خبروں کی زینت بن جاتے ہیں جب ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر کہ وی سی صاحب رکشہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یار میں سوچ رہا ہوں میں بھی رکشہ چلاؤں، تو پینشن تو ملتی نہیں، بلوچستان یونیورسٹی سے پینشن نہیں، پینشن کونی بھی میں رکشہ چلا سکتا ہوں۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے رکشہ چلانا ہے۔ وی سی شپ ختم تھی بھی پائیے کہ اس ملک میں نہ علم کی قدر ہے، نہ انصاف ہے، نہ ایمانداری کی قدر ہے، اور اگر قدر ہے تو پیسے کی ہے۔ میرا بیٹا کہتا ہے بابا جی اسلام آباد میں رکشے نہیں ہے، میں نے کہا میں اپنا تو رکھ سکتا ہوں نا، تو درخواست دوں گا، یہ میں کرنے والا ہوں۔ یہ انیشیٹو لینے والے ہیں آپ؟ او یس، یہ میری ایک سیئنگ ہے، بہت پرانی ہے کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز، کہ نئی نسلوں کو نئے خواب دکھانے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں، کچھ نئے شعر سنانے کے لیے اپنے ہونے کا دے رہا ہوں ثبوت، اس بڑھاپے میں سرکشی کر کے کیوں نہ ہو زخمی بدن احساس کا، ماں کے سر پہ میلی چادر دیکھ کر۔ جی آج اس وقت ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں منصور اکبر کنڈی صاحب سے، جو کہ وائس چانسلر ہیں بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے۔ وی سی صاحب اس وقت خبروں کی زینت بن جاتے ہیں جب ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر کہ وی سی صاحب رکشہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وی سی صاحب سے جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ سارا سلسلہ، یہ سچویشن کیا تھی۔ ہوا یہ بیٹا کہ میں یہاں وائس چانسلر ہوں اور 26 کو میرا ٹینور ختم ہو رہا ہے سپتمبر کو، تو میں ویسے میں نے کچھ مہینے پہلے ایک اپنا یوٹیوب چینل کھولا، گئے میری لوگ ویڈیو بناتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے جی بڑی پاپولر ہے، لوگ لائک کرتے ہیں، تو مجھے بیٹے نے کہا، کسی نے کہا کہ بابا آپ اپنا یوٹیوب بنا لیں۔ تو یوٹیوب ہے جس میں میں روز واک کا میسج، کچھ اپنا پولیٹیکل سائنس، کچھ معاشرہ، ظاہر ہے میں رائٹر ہوں، میں ڈان نیشن انگلش رائٹر تھا، بہت لکھتا تھا، ریٹن 10 بکس، تو ظاہر ہے تو میں اپنے جو زندگی کو کیسے میں نے پایا وہ شیئر کرنے لگا، تو لوگ لائک کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن یہ ویڈیو ہم نے بنا لی، وہ میرا جو ایک اٹینڈنٹ میرا جو ویڈیو بناتا تھا قمر، اس نے کہا جی یہ جو رکشہ ہے یہ رکشے پہ کوئی ویڈیو بناؤ۔ تو میں نے تھوڑا سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہے تو 2.5-3 منٹ کی وہ ویڈیو، بٹ وہ اتنی کلک ہوئی۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، حضرت اقبال کا، علامہ اقبال کا، کہ خوش آ گئی ہے زمانے کو کلندری میری، ورنہ شاعری میری کیا ہے، اشعار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو میری ویڈیو تھی اور معاشرے کے زخم، معاشرے کی جو تکلیفیں ہیں، اس کی بھی یہ آواز بنی۔ اگر یہ ویڈیو شاید سویڈن میں بناتا کوئی، یا اگر کوئی مالی بناتا کہ میں ویڈیو چلاتا ہوں، کسی نے نہیں دیکھنی تھی یا اتنی کلک نہ ہوتی، تو ایک جو وائس چانسلر ہے پنجاب کی دوسری بڑی یونیورسٹی کا، تو یہ ہے۔ اور اس کے پیچھے ظاہر ہے میں نے بولا تھا کہ اس ملک میں نہ علم کی قدر ہے، نہ انصاف ہے، نہ ایمانداری کی قدر ہے، اور اگر قدر ہے تو پیسے کی ہے۔ تو میں یہ انگلش میں کہتے ہیں either you convince me or I convince you۔ تو علم کی تو قدر نہیں ہے، جہاں اچھی سکولنگ نہ ہو، جہاں غریب امیر کے سکولنگ میں فرق ہو۔ ہمارے زیادہ سکول گوسٹ بن چکے ہیں، پیلے سکول بن چکے ہیں، خواہ وہ سندھ ہے، خواہ پختونخوا ہے، جو کہ پبلک سکول ہیں۔ تو اگر وہ سکول اچھے ہوتے، ہمارا ایک کریکولا ہوتا، امیر اور غریب کمپیریٹیولی ایک اسکول میں جاتے تو علم کی قدر ہوتی، یہ لڑکے آگے آتے، جو نہیں ہوا۔ فیمیل ایجوکیشن سفر ہوئی، ایک وہ تھا۔ دوسری بات یہ، ہم کرپشن کا ماتم روتے ہیں، اور کرپشن ہے ہائی لیول پہ تو زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ 77 کے بعد بڑھی ہے۔ جب پاکستان 55 سال کا تھا یا 45 سال کا، وہ زیادہ
कंपैरेटिवली ईमानदार था, आज इतना ईमानदार नहीं है। तो वो मेरा मैसेज था। और तीसरा मैसेज ये था कि पैसा है, अब इस मुल्क में मनी माफिया है, दिस दैट माफियाज हैं, और माफिया का जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है वो पश्तो में कहते हैं, जो मैंने एक अपने आर्टिकल में लिखा, लेकिन मुझे एक आम बंदे ने ये मैसेज दिया था। मैंने कहा ये माफिया क्या है? कहते हैं माफिया के 4 टैक्टिक्स हैं, जर, ज़ारई, कंजरई, जोर। बड़े सख्त अल्फाज हैं। हाँ, जर माना पैसा, सोना, ज़ारई पाँव पड़ जाना, ये जो एनआरओ था, ये जो क्या था वो मुक्का वाला, तो ये था कि आप इतने पैसे दे दें तो आपकी सज़ा माफ़, जो भी बुरा तरीका नहीं है। कंजरई वो जो प्रोस्टिट्यूशन या वो सॉरी वो जो, अब उस पर मैं बहस नहीं कर सकता इसलिए। और जोर, थ्रेट, आप ये कह देना कि हम 50 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन 1 साल तक नहीं होगा, तो लोग कोई एडजस्टमेंट तो कर लेंगे, या साइकिल पे आ जाएंगे, या 1 साल। यहाँ तो अनसर्टनिटी है। तो ये जब पेट्रोल महंगा हुआ पिछले, ये जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई, 45 रुपए, 40 रुपए, ऑल ऑफ ए सडन एक दिन तो 26 रुपए हाइक हुई। तो फर्क तो पड़ता है ना जी, कि नई नस्लों को नए ख्वाब दिखाने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ, कुछ नए शेर सुनाने के लिए अपने होने का दे रहा हूँ सबूत, इस बुढ़ापे में सरकशी करके। अब मैंने जब इस्लामाबाद जाऊँगा तो मैंने इस्लामाबाद गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर या जो भी है उसको दरख्वास्त दूंगा मैं कि मुझे एक प्राइवेट रक्शे की इजाज़त दी जाए। एक तो पेट्रोल महंगा है, पोस्ट रिटायरमेंट अब पेट्रोल जिस तरह महंगा हो रहा है, गाड़ी तो अफोर्ड करना मुश्किल है, रक्षा अब तो वो जो नए रक्शे हैं उसमें पेट्रोल कम लगता है, फ्यूल एफिशिएंट। तो इस्लामाबाद में रक्षा नहीं है। और मेरा बेटा कहता है बाबा जी इस्लामाबाद में रक्षा नहीं है। मैंने कहा मैं अपना तो रख सकता हूँ ना, तो दरख्वास्त दूंगा, ये मैं करने वाला हूँ। ये इनिशिएटिव लेने वाले हैं आप? ओह यस, कि मुझे जी रक्षे खरीदने, प्राइवेट होगा। अब एक अगर बेरोजगार जवान है एंड इफ ही इज अ गुड ड्राइवर, वो रक्षा चलाए, फालतू वक्त में अपनी किताब पढ़े, उसको किसी ने पीसीएस सीएसएस की तैयारी से तो नहीं रोका, लेकिन अगर जॉब मिल जाए वो रक्षा किसी और के हवाले कर दे। और रक्षा एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप कभी अदर साइड ऑफ फेंस देखें तो लोग होपलेस हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वीसी साहब आप भी वीसी होकर रिक्शा चलाने पर सोच रहे हैं तो क्या मतलब है कि हमारा जो निज़ाम है तालीमी जो निज़ाम है वो क्या इतना फरसूदा हो गया है कि इतना हाई क्वालिफाइड बंदा, क्योंकि लोग शायद उससे रिलेट नहीं कर पाए आपकी वीडियो से, तो आप इस बारे में क्या कह पाएंगे? भाई तालीमी निज़ाम इतना फरसूदा हो गया है कि अब लोगों को रिक्शे की तरफ भी जाना पड़ेगा इतने हाई क्वालिफाइड होने के बाद। यार मुझे तो जो बड़े बड़े लोगों ने कॉल की और स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने कहा सर एक्सीलेंट, वी आर प्राउड ऑफ यू। वो एक शेर मैंने 1-2 दफ़ा पढ़ा कि ना बाद सबा ना नसीम सहर चाहते हैं लोग, ये लू है कि हब्स की दुआ मांगते हैं लोग। बात यह है कि एक वाइस चांसलर का ऐसा करना मेरी नज़र में कोई ह्यूमिलिएशन नहीं है। एक वाइस चांसलर रक्षा चला सकता है, इसमें कौन सी बुराई है? कोई इस्लाम ने मना किया है? इस्लाम में तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। वो कभी आदमी देखो अमेरिकन प्रेसिडेंट हु रूल फॉर 8 ईयर, उससे किसी ने पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हैं, आपका दिल, उसने कहा जी मेरा दिल चाहता है कि मैं उस्ताद बन जाऊं, मैं पढ़ाऊं किसी लेवल पे। ये मेरी एक सेइंग है, बहुत पुरानी है कि नेशंस आर बिल्ट एंड डिस्ट्रॉयड इन क्लासरूम्स। कुछ कहा जा रहा है कि आप तो सस्पेंशन आपकी चल रही है और ये कोई पब्लिसिटी स्टंट खेला गया आपकी जानिब से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर बात यह है कि एक लॉ कॉलेज इशूज था जो खुदा गवाह मुझसे पहले था, अब वो इधर इंसाफ न भी हुआ तो रब तो एक दिन करेगा। बहरहाल मुझे जी 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट है सर आंखों पे, उसने कहा रजिस्ट्रार एंड द वाइस चांसलर आर सस्पेंडेड। अब मैं तो जी कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट तो प्राइम मिनिस्टरों को घर भेज सकती है, मेरी क्या हैसियत है? लेकिन सस्पेंड हो गया। मैंने वर्बली सुना, मैंने कहा जी मैंने एक दिन नहीं काम करना, कंटेम्प्ट में आऊँगा, कोर्ट का हुक्म है, सर आंखों पे। अदालतें माई बाप होती हैं, अदालतों से आपको इंसाफ मिलता है, आप जज को लॉर्डशिप कहते हैं। तो मैंने तो फिर एक 40 दिन के बाद फैसला आया, तो उसमें भी वही था
फिर आज तक 1-2-3 पेशियाँ हुई, उस पर फैसला नहीं हुआ। बहरहाल मैं चूँकि सब जुडिस है, मैं उस पर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सस्पेंड था। और उस सस्पेंशन में फिर मैंने ये वीलॉग और अपनी किताब एक कंप्लीट की। एक किताब मैं और लिख रहा हूँ, अ टेल ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज वीसीशिप। अच्छा, हाँ, वो बना रहा हूँ, अब लिखता हूँ ना, टाइम तो पास कर रहा अभी हूँ। कंप्लीट की है सर वो बुक हमें किस वो अभी पब्लिश होगी। दो पब्लिशर ने कहा मैं हम पब्लिश करना चाहते हैं। वो 100 वाक़यात ऐसे हैं कि मैंने ज़िंदगी को कैसे पाया। क्यों ना हो ज़ख्मी बदन एहसास का, माँ के सर पे मैली चादर देखकर। अच्छा सर, एट लास्ट एक तो अपने स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दीजिएगा, और अब उनको ये भी बताएं कि रिक्शा कौन सी कंपनी का अच्छा। अब तो आपकी कोई ऑब्वियसली आपने रिसर्च वर्क की होगी, आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी किसी भी रिक्शे को ऐसे तो हाथ नहीं डालेगी ना यार। ये मैं अभी फिर बोलूँगा या कोई ऐड में मुझे ले आए, मुझे तो नहीं पता रक्षा किस कंपनी का है। हाँ, ये पता है कि रक्षे की कीमत कितनी है, वो जो मैंने पूछा कि अब 4.5 लाख का है। अब पता नहीं उस पर टैक्स कितना लगता है। लेकिन मेरा मैसेज स्टूडेंट को वही है कि लव नॉलेज फर्स्ट, लव योर कंट्री, लव नॉलेज एंड लव डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बी गुड पाकिस्तानी, बी गुड मुस्लिम, बी गुड ह्यूमन बीइंग। जी बिल्कुल, आपने वीसी साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं जी आप इनकी गुफ्तगू से महजूज हुए होंगे। जो मामे की वजह से हाईलाइट हुए मेन स्ट्रीम और डिजिटल मीडिया पे, उन्होंने उसके बारे में बताया कि वो हर एक अपनी वीडियो में एक पॉजिटिव मैसेज की गर्ज से वीडियोस बनाते हैं। और गो के अब वीसी साहब 26 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, तो वो कहते हैं ये भी मेरी एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी याद है कि मैंने जाते हुए भी आखिरी लम्हे तक काम किया है और दुनिया को करके दिखाया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।